Hello students, a very lovely good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fine. This is your English period, okay? English class. Take out your English book, the English coach. Have a student. Today we will do poem, okay? So take out your English book, page number 30. What is the date today? What is the date today? 13. Which month is going on? July. July is the 7th month of the year. What is the day today? Monday. Spelled out Monday. 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 Poem. Kittens, kittens. Kittens, kittens. Okay. Yes student, there is no need to learn the poem. Okay. Only you listen the poem very carefully. In exam there will be MCQ question answer from poem. एग्जाम में आपके पोएम से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो सो प्लीज लिसन द पोएम वेरी केयरफुली. ओके. किटन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किटन्स? बेबी ऑफ कैट. बेबी ऑफ कैट. कैट की बेबी को हम क्या बोलते हैं? किटन्स. नाउ everybody take out book and put the finger where I am reading. Kittens, kittens. Everywhere. Kittens. 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 Every. Every. WHERE. Everywhere. Kittens. Kittens. Everywhere. Everywhere mean हर जगह. Kittens. Kittens. यानी क्या है? बिल्ली के बच्चे हैं. Kittens. Kittens. Next line. Kittens. CHEWING. What is this? CHEWING. 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 What is the meaning of chewing? Chabana. What is the meaning of chewing? Chabana. on. my. HAIR. Here. Kittens, kittens everywhere. Kittens chewing. 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 on. my. HAIR. Hair. यानी किटन्स चुइंग मतलब चबाना. ऑन माई हेयर. किटन्स मेरे हेयर्स को क्या कर रही है? चबा रही है, चुइंग कर रही है. Kittens climbing. 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 UP up. my. JEANS. Jeans. Kittens climbing up my jeans. CLIMBING. Climbing यानी चढ़ना. क्लाइंबिंग यानी चढ़ना. अप माई जींस. किटन जो है मेरी जींस पर ऊपर चढ़ रही है. किटन्स हैंगिंग. FROM from the screen. SCREEN. Screens. Kittens hanging. Hanging means लटकना. HANGING. Hanging. from THE the SCREEN. Screens. किटन जो है वो स्क्रीन पर क्या हो रही है? हैंग हो रही है, हैंगिंग हो रही है. नेक्स्ट. THERE. There is a
kitten on each shoulder. SHOULDER. What is this? SHOULDER. Shoulder. Shoulder means जो हमारे कंधे होते हैं. There is a kitten on his shoulder. यानी मेरे कंधों पर क्या है? Each यानी मेरे हरे कंधे पर क्या है? Kitten है. A kitten है. Will they do THIS this WHEN when THEY they are older. OLDER older. OLDER older. Everybody see WILL will, THEY they, DO THIS this, WHEN when, THEY they are. इसका मतलब क्या था? मीन्स are. OLDER older. पॉइंट कहता है will they do this, क्या वो इस काम को करेंगी? when they are older. older मीन्स जब वो बड़ी हो जाएंगी. will they do this, क्या वो इस काम को करेंगी? जैसे वो क्या कर रही हैं? च्विंग कर रही हैं पोएट के हेयर को, यानी इसके जो पोएट है इसका वो बता रहा है कि वो मेरे हेयर को च्विंग कर रही हैं, चबा रही हैं और मेरी जींस पर ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं. क्लाइंबिंग अप माई जींस, मेरी जींस पर चढ़ रही हैं. हैंगिंग फ्रॉम द स्क्रीन, और स्क्रीन पर हैंग कर रही हैं. देयर इज अ किटन ऑन ईच शोल्डर, और उसके हरे कंधे पर क्या है? किटन है. नाउ द पोएट सेड दैट विल दे डू दिस, क्या वो इस काम को करेंगी? व्हेन दे आर ओल्डर, जब वो बड़ी हो जाएंगी, ओल्डर हो जाएंगी, इससे बड़ी होंगी, तो क्या वो इस काम को करेंगी? विल दे डू दिस. अगेन रीड दिस पोएम. I am again saying don't learn this poem, only understand the poem. MCQ question will be in exam. इस पोएम से आपके एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे. So everybody listen the poem very carefully. Kittens, kittens everywhere. Kittens कहाँ पर हैं? Everywhere, हर जगह हैं. Kittens chewing on my hair. Kittens क्या कर रही हैं? chewing कर रही हैं. CHEWING. chewing है तो चबा रही हैं. on my hair, उसके बालों को चबा रही हैं. Kittens climbing up my jeans. और kittens क्या कर रही हैं? climbing means चढ़ना. up my jeans, किस पर चढ़ रही हैं? jeans पर चढ़ रही हैं. Kittens hanging from the screen. और वो किस पर हैंग हो रही हैं? स्क्रीन पर हैंग हो रही हैं. There is a kitten on each shoulder. और क्या है मेरे हरे कंधे पर? किटन है. will they do this, क्या वो इसे करेंगी? when they are older, जब वो बड़ी हो जाएंगी. now give me the answer. the kittens chewed the dash of the poet. क्या च्विंग कर रही है किटन पोएट के? hair. the answer will be hair. the answer will be hair. okay, now understand everybody. kittens chewing, CHEWING, chewing. CLIMBING, climbing. climbing means चढ़ना. HANGING, hanging means लटकना. SHOULDER, shoulder. shoulder means कंधा. okay, OLDER, older. understand everybody? now move to the next stanza. see, kittens, 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 FIGHTING. FIGHT क्या होता है? fight. ING fighting. FIGHTING fighting. everybody speak. fighting. fighting means लड़ाई करना. ON, on. on the THE, the chair. CHAIRS, chairs. kittens fighting. FIGHTING, fighting means लड़ाई करना. ON, THE, the CHAIRS, chairs. kittens क्या कर रही हैं? फाइटिंग कर रही हैं. कहाँ पर कर रही हैं? चेयर्स पर वो फाइटिंग कर रही हैं. नेक्स्ट लाइन. kittens
KITTENS, TUMBLING, TUMBLING, तुबलिंग, TUM तो BLING, तुबलिंग. Down the stairs. किटन्स तुबलिंग डाउन द स्टेयर्स. तुबलिंग और गिर जाना, नीचे की तरफ लुढ़क जाना, गिर जाना. डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियां. स्टेयर मीन्स सीढ़ियां. स्टेयर्स मीन सीढ़ियां. किटन्स तुबलिंग डाउन द स्टेयर्स. जो किटन्स है वो स्टेयर से क्या हो रही है, गिर रही हैं. तुबलिंग मीन्स TUMBLING, TUMBLING, तुबलिंग. DOWN, down. THE, the. STAIRS, stairs. THERE, there is a KITTEN, kitten. ON, MY, HEAD, head. There is a kitten on my head. क्या कह रहा है कि there is a kitten, एक किटन है on my head, मेरे सर पर. There is a kitten in the bread. Bread means क्या होता है? Bread means रोटी. उसे ऐसा लग रहा है कि एक किटन्स कहाँ पर है, ब्रेड पे है, रोटी पर है. There is a kitten in my shoe. There is a kitten in my shoe. मेरे जूते में किटन है. There is a kitten in my shoe. Okay, IDONT, don't. I do not, आप इसे don't read कर सकते हैं, do not read कर सकते हैं. Do not believe, BELIEVE, believe यानी विश्वास करना. I don't believe, WEVJUST, just. HAVE, have. TWO, ओके. वो क्या कह रहा है, देयर इज अ किटन ऑन माई हेड, कि एक किटन मेरे सर पर है. देयर इज अ किटन इन द ब्रेड, एक किटन कहाँ पर है, ब्रेड में है. देयर इज अ किटन इन माई शू, मेरे जूते में है. आई डोंट बिलीव, बिलीव यानी विश्वास होना. BELIEVE, बिलीव यानी विश्वास करना. वी जस्ट हैव टू, वो कह रहा है कि आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. वी जस्ट हैव टू, कि सिर्फ मेरे पास 2 किटन्स हैं, कि मेरे पास 2 किटन्स हैं. अगेन किटन्स, FIGHTING, फाइटिंग. ON, THE, the. CHAIRS, chairs. किटन्स फाइटिंग ऑन द चेयर्स. किटन जो हैं वो चेयर पर फाइटिंग कर रही हैं. किटन्स तुबलिंग डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, तुबलिंग यानी गिर जाना. जो किटन्स है वो स्टेयर से गिर गई है. देयर इज अ किटन ऑन माई हेड, उसे ऐसा लग रहा है कि एक किटन मेरे सर पर है. देयर इज अ किटन इन द ब्रेड, एक किटन ब्रेड में है. देयर इज अ किटन इन माई शू, और एक किटन जो है मेरे शू में है. आई डोंट बिलीव, पॉइंट कहता है आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा. वी जस्ट हैव टू, कि मेरे पास कितने किटन्स हैं, 2 किटन्स हैं. तो हाउ मेनी किटन्स इन दिस पोएम, इस पोएम में कितने किटन्स हैं. हाउ मेनी किटन्स, 2. हाउ मेनी किटन्स, 2. Now it is clear, student? It is clear? Okay. Now we move to the book exercise and the page number is 3131. Everybody take out. Book exercise and the page number is 31. Page number, book exercise. First question is tick the correct answer. Tick the correct answer.
First is the poet. Poet has dash kittens. ओके नाउ पोएट क्या होता है क्लास? द पोएट हैज दैट किटन. पोएट होता है कवि, यानी जिसने इस कविता को लिखा है. इट इज पोएट, जो बता रहा है कि किटन्स कहाँ पर है, मेरे सर पे है, ऐसा लग रहा है कि ब्रेड पे है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे कितनी किटन्स हैं, कि मेरे पास 2 ही किटन्स है. वो क्या होता है? पोएट. सी द पोएट हैज डैश किटन्स. पोएट के पास कितनी किटन्स हैं? देयर आर 2 ऑप्शन. ए इज 3 किटन्स है पोएट के पास. ऑप्शन इज बी 2. स्टूडेंट गिव मी द आंसर. हाउ मेनी किटन्स पोएट हैज? पोएट के पास कितनी किटन्स है? 3, 2. द राइट आंसर विल बी 2. तो टिक 2. द राइट आंसर विल बी 2. TWO. सेकेंड इज द KITTENS kittens. CHEWED the dash of the poet. Now you read in the poem, kittens chewing on my hair. Chewing on my hair. Same question is here. The kittens chewed the dash of the poet. ये जो kittens हैं, chewed यानी चबाना, वो क्या चबा रही हैं? The dash of the poet. वो poet के क्या चबा रही हैं? फर्स्ट है चेयर्स, वो poet की चेयर्स को चबा रही हैं. बी है हेयर, या वो poet के हेयर चबा रही हैं. क्या चबा रही है क्लास? आपने अभी पोएम को रीड किया है. बट विल द आंसर हेयर. HAIR हेयर. वी टेक हेयर. सेकेंड ऑप्शन इज हेयर. Tick on hair. Now, third is, now I erase it. Third is the KITTENS kittens. TUMBLED tumbled down the dash. The kittens tumbled down the dash. अभी आपने पढ़ा था kittens tumbling down the stairs. It means जो kittens हैं वो कहाँ से नीचे गिर रही हैं, किस चीज से वो नीचे गिर गई हैं? There are 2 option. Stairs, यानी वो सीढ़ी से नीचे गिरी हैं. बी पार्ट इज चेयर्स, या फिर वो कुर्सी से नीचे गिरी हैं. किस चीज से नीचे गिरे किटन्स? स्टेयर्स. द करेक्ट आंसर विल बी स्टेयर्स. वी टिक द स्टेयर्स. फोर्थ पार्ट, द किटन्स गॉट inside the dash of the poet. जो किटन्स हैं गोट इनसाइड द डैश ऑफ द पोएट, कि वो पोएट को किसके अंदर दिख रही हैं? कहां पर है? गॉट, कहां पर मिली है उसे? शू, जूते के अंदर. सॉक्स. गिव मी द आंसर. Kitten or kitten? There is a kitten in my shoe. So what will the right answer? Shoe. I will take first 2, second hair, third stairs, fourth answer shoe. Everybody tick the correct option. Okay. Now done. Now move to the B part. Now move B part. B part is find words from the poem that rhyme with these words. आपको rhyming word find out करने हैं. क्या find out करने हैं? Rhyming words. You know what is the rhyming word? जिनकी sound last में बिल्कुल same आती है.
ओके, जैसे कैट, बैट, जस्ट लाइक दिस, टिन, बिन, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। आपको पोयम में से ही वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो नीचे दिए गए वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स हो। ओके, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। आपको पोयम में से ही क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। कौन से वर्ड फाइंड आउट करने हैं, राइमिंग वर्ड। ओके, राइमिंग वर्ड्स पोयम में से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है आपका SHOULDER, शोल्डर। सेकेंड इज स्टेयर्स, थर्ड इज हेड, फोर्थ इज टू। क्या करना है आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनका राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। किसमें से, पोयम में से। किसमें से, पोयम में से। ओके, फर्स्ट इज शोल्डर, शोल्डर का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, ओल्डर। राइट डाउन, ओल्डर, OLDER, ओल्डर। शोल्डर, ओल्डर, सेम साउंड है, राइमिंग वर्ड है, शोल्डर, ओल्डर। ऐसे कैट, बैट, सेम, शोल्डर, ओल्डर, OLDER, ओल्डर। सेकंड देखिए, STAIRS, स्टेयर्स। स्टेयर्स का व्हाट विल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम ऑफ स्टेयर्स, एनीबॉडी? चेयर्स, स्टेयर्स, चेयर्स, spelled out chairs, 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 stairs, chairs. Okay, third, head, 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 bread, spelled out bread, 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 head, bread. टू शू, पोएम में से ही फाइंड आउट करना है क्लास आपको, तो देयर इज नो ऑप्शन, टू शू। शोल्डर, ओल्डर, OLDER, ओल्डर। स्टेयर्स, चेयर्स, राइट डाउन, CHAIRS, चेयर्स। हेड, ब्रेड, BREAD, bread. To shoe, SHOE. Note down fast. And the C part is, write down HA. C part को आप खुद करेंगे। Very simple. Give the two naughty kittens name. आपको दो naughty kittens, naughty means शरारती kittens के नेम दिए गए हैं। Their names must rhyme. उनके जो नेम है वो राइमिंग वर्ड्स की तरह हैं। Here is an example, जैसे लिया and मिया, just like. Give the two naughty kittens name. टू नॉटी किटन्स के नेम दिए गए हैं, देयर नेम्स मस्ट राइम, उनके जो नेम्स हैं वो राइमिंग में है। हियर इज एन एग्जाम्पल, जैसे लिया एंड मिया। ओके, क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, सेम साउंड्स वर्ड है, राइमिंग वर्ड है। सेम आपको क्या करना है, टू कैट्स की जो आपका फेवरेट कैट नेम्स है वो आपको टू ऐसे ही राइमिंग्स नेम लिखने हैं। माय फेवरेट इज मैरी, चेरी। ओके, मैंने तो लिखा है यहाँ पर मैरी, चेरी, LILY लिली, MILY मिली। ओके, एज यू विश, आपको जो नेम फेवरेट लगता है किटन्स का वो आप राइमिंग वर्ड्स की तरह यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, यू डू दिस योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, नाउ द पोएम इज ओवर। एवरीबडी गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? गॉट इट एवरीबडी? ओके, I will give you a revision sheet also. Everybody complete that revision sheet in your rough copy. Okay, because exam is near. Focus on the study. Only the PT1 will be on MCQ base. So every student read the chapter and read the poem very carefully so that you give the answer very nicely.
ताकि आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली टिक लगा पाए। इफ यू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली देन यू नो ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे या पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यू पर टिक बहुत इजीली लगा पाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ फोकस ऑन द स्टडी बिकॉज एग्जाम इज नियर। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय।